Hello dear TYBSc microbiology students. So in the last PPT of the immunology 1 we have seen the antigenic determinants and the types of antigenic determinants. So in this PPT we are going to study hapten. So now remember this basic point that haptens, they are the molecules, they are antigens. They are not antigens, they are incomplete antigens which are antigen but they don't trigger the immune response. मतलब वो immunogenic नहीं है. They don't have the immunogenicity. That is why when they are combined with the carrier molecule then only they generate a immune response. मगर मतलब अगर आपने हेप्टेन को इनोकुलेट या फिर हेप्टेन को इंजेक्ट किया किसी इंडिविजुअल में तो उनमें वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करे या फिर इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करे. अपोजिट टू दैट, मतलब वो क्यों करते ऐसा कुछ डिटेल में है नहीं, बट वो जो है वो एंटीजन है, बट वो जो है वो एंटीजन होके भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाते. जब वो टी सेल या बी सेल से कंबाइन होते तब भी वो मतलब वो जो है एज एंटीजन रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाते बी सेल से. उनके बाइंड करने की कैपेबिलिटी है टी सेल को या बी सेल को या फिर बट वो एंटीबॉडी को जो है वो बाइंड नहीं हो पाते या उनके अगेंस्ट जो है हेप्टेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट नहीं हो पाती. So heptanes are the molecules which reacts with the specific antibodies but they are not the immunogenic and they can be made immunogenic by conjugation to a suitable carrier. लाइक कैरियर का यूज़ करके हम उनको इम्यूनोजेनिक बना सकते हैं. यहाँ पे डायग्राम में अगर आपको सिंपल डायग्रामेटिकली देखा जाए तो हेप्टेन इंडिविजुअल है, वो अगर कैरियर प्रोटीन पे जाएंगे तो उनका एक कंप्लीट एंटीजन बन जाएगा विच विल ट्रिगर द इम्यून सिस्टम, विच विल generate the immune response. So heptane in short are the incomplete antigen. So अगर नोट डाउन करें हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सो हेप्टेन्स आर द लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स. दे डोंट हैव दैट, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. That may be the reason that they are not much immunogenic because they are very small in size. They may not be the immunogenic. Then they are the small organic molecules that are antigenic but not immunogenic. Antigenic मतलब क्या, वो एंटीजन तो है, वो मतलब कि जाके बाइंड हो सकते हैं जो टी सेल रिसेप्टर हो, बी सेल रिसेप्टर हो, बट दे आर नॉट एबल टू जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स. दैट इज़ वाई दे आर नॉट इम्यूनोजेनिक बट दे आर एंटीजेनिक. वो एंटीजन है बट इम्यूनोजेन नहीं है, which means they bind to the immune cell but fail to induce the humoral or the cell mediated immune response. वो cell mediated और the humoral immune response को generate ही नहीं कर पाएंगे, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी, जो एंटीबॉडीज़ है वो उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी. So no antibodies are generated against them. Remember these things. ये 4 पॉइंट भी आपने याद रखे ना, बहुत है कि हेप्टेन जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट है, स्मॉल कंपाउंड से, वो खुद तो एंटीजेनिक है बट इम्यूनोजेनिक नहीं है. मतलब वो एंटीजन जैसे एक्ट करते हैं कि वो टी सेल बी सेल से जाके बाइंड हो जाएंगे बट दे कांट जनरेट द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स और इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट, लाइक उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाता. That is why they don't generate any type of humoral immunity. They don't trigger the humoral immunity or they don't trigger the cell mediated immunity. And also they don't raise, or the B cell or B cell particularly, they don't raise the antibody against the heptanes. So why they are not immunogenic? They are not activated. They are not going to activate the T cell. They are not going to activate B cell. That is why they are not going to generate antibodies. This B cell and T cell. That is why they are not immunogenic. Okay. So now heptane when conjugates with the B cell or when the heptanes they conjugate with the carrier protein, they form the immunogenic heptane carrier conjugate. उसका जो है इम्यूनोजेनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने वाला है. So that is why it is called as immunogenic heptane carrier conjugate. Then this carrier protein जो है उसका अगर हम इंडिविजुअली बात करें कैरियर प्रोटीन का, तो हम जब इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो कैरियर प्रोटीन जब हम किसी में इनोकुलेट करेंगे इंडिविजुअली तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. बट अगर हमें हेप्टेन जो है उसको इनोकुलेट करेंगे इंडिविजुअली, वो नहीं जनरेट कर पाएगा. कैरियर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास हेप्टेन है या नहीं, बट हेप्टेन को फ़र्क पड़ता है. उसको कैरियर चाहिए, मतलब उसको कैरियर की ज़रूरत है. अगर वो इंडिविजुअल है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा.
So this is the main property of the heptane, that it needs a carrier, otherwise it is inactive molecule. It is not antigenic, sorry, it is not immunogenic, it is just एंटीजेनिक. सो यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में, आप देख सकते हैं कि बी सेल को जो है हेप्टेन इट विल बाइंड बट इट विल नॉट स्टिमुलेट देम टू जनरेट एंटीबॉडीज. बट जब वो कैरियर को जाके बाइंड होगा, heptane has the ability to bind with B cell, and the carrier molecule protein has the ability to bind the T helper cell, and when they bind the T helper cell, they will generate an immune response. They will pass a signal to the B cell. That is why B cell will generate the antibodies. मतलब उन दोनों को जो है कैरियर हेप्टेन को, मतलब हेप्टेन या कैरियर दोनों को, उनको टी हेल्पर सेल एंड बी सेल दोनों से बाइंड होना पड़ेगा, तभी बी सेल जो है वो एंटीबॉडी जनरेट करेगी. रिमेंबर दिस थिंग, ये डायग्राम आप याद रख लो. Then heptane, it will not activate the B cell individually. When they are combined with the carrier molecule, then only they will activate the B cells. BSA प्रोटीन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. सो अब डिफरेंस की बात करें, एंटीजन या हेप्टेन में क्या डिफरेंस है. तो एंटीजन हेप्टेन दे बोथ आर एंटीजन्स ओनली, बट एंटीजन की बात करें तो वो इम्यूनोजेन भी है, मतलब उसके मतलब वो जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगी. बट हेप्टेन जो है वो बस नाम का एंटीजन है, मतलब वो काम तो एंटीजन वाला करेगा नहीं. इट इज़ नॉट ए इम्यूनोजेन. इसकी वजह से क्या होगा कि वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा. ये बात आप याद रखो. देन आफ्टर दैट what is the similarity? So both are antigen, they are both present on the surface of the like cell or bacteria whatever, and both are like present on the extracellular surfaces. antigen है, दोनों भी जो है जाके बी सेल टी सेल से बाइंड करेंगे. then both form the part of the defense mechanism system between the antigen and antibody. मतलब एंटीजन एंटीबॉडी का जो मतलब रिएक्शन होके जो भी डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है उसके तो पार्ट है वो इनडायरेक्टली. बिकॉज वाई, हमारा हेप्टेन भी जाके बी सेल से बाइंड होगा, हमारा एंटीजन भी है वो जाके बी सेल से बाइंड होगा. इसके वजह से वो पार्ट तो है इम्यून सिस्टम का, बट वो आगे क्या करेगा वो बात की बात है. बट हियर इट इज़ पार्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम. देन बोथ हैव एबिलिटी टू बाइंड टू द एंटीबॉडी वाया वीक लिंक. अब यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग दी गई है, आयनिक इंट्रैक्शन इज़ देयर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ देयर, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इज़ देयर. दिस आर ऑल द लिंकेजेस. अब हेप्टेन कैरियर बाउंड होंगे तो उनमें कुछ तो इंट्रैक्शन होगा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं. दे मे बी द आयनिक रिएक्शंस और दे मे बी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस. देन ये इन शॉर्ट आपको दिया गया है. यहाँ पे हेप्टेन का मतलब है टू फास्टन. सो मेनी लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट एंटीजेनिक बाय देमसेल्स बट बिकम एंटीजेनिक व्हेन दे बॉन्ड टू द लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल प्रोटीन्स. these things are called as heptane. देन दिस लोअर मॉलिक्यूलर जो लोअर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है वो जाके लार्जर मॉलिक्यूल से बाइंड होंगे, वो देन एक्टिवेट होंगे, देन वो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करेंगे. हेप्टेन छोटे हैं, कैरियर प्रोटीन्स आर लार्जर इन द साइज, देन दे विल बाइंड, दे विल जनरेट ए इम्यून रिस्पॉन्स. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है पेनिसिलिन का. सो यहाँ पे पेनिसिलिन की बात करें तो हम अगर पेनिसिलिन ले, देन आफ्टर दैट इट इज़ नॉट इटसेल्फ एंटीजेनिक, बट जब वो हमारे बॉडी के सीरम यानी कि हमारे बॉडी के फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स के कुछ प्रोटीन्स के साथ कंबाइन हो, देन वो शायद हमारे टी सेल बी सेल को ट्रिगर करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, एंड देन दे विल किल द बैक्टीरिया. मतलब हम जब एंटीबायोटिक लेते हैं लाइक पेनिसिलिन, तो वो क्या करेगा, वो वैसे तो एक्टिव नहीं है, वो वैसे तो कुछ नहीं करेगा. जब वो जाके इनसाइड हमारे बॉडी सीरम के साथ कंबाइन होगा, उसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाएगा. देन हमारे बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट करेगा वो. उसके साथ बाइंडिंग करने के बाद, बी सेल और टी सेल के साथ बाइंडिंग करने के बाद हमारे बी सेल्स को बोलेगा कि वो एंटीबॉडी जनरेट करे. तो देन वो एंटीबॉडी जनरेट होने के बाद बैक्टीरिया को जाके वो एंटीबॉडीज किल करेगी. सो दिस इज़ हाउ पेनिसिलिन वर्क्स. सो इसके अलावा अब ये मैंने बेसिक ये देखो, आप देख सकते हो कि कैरियर डाला हमने रैबिट में, इट विल जनरेट द एंटीबॉडीज़. बट अगर हेप्टेन हमने डाला, इट विल नॉट जनरेट द एंटीबॉडीज़. बट हमने अगर हेप्टेन एंड कैरियर दोनों को डाला, देन इट विल जनरेट द एंटीबॉडीज़. बट उसमें थोड़ा सा हेप्टेन वाला कुछ स्ट्रक्चर है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो आएगा. यहाँ पे देख सकते हो आप, ब्लू कलर में है. देन टॉकिंग अबाउट सेकंड एग्जांपल आपको दूँ तो पॉइजन आइवी नाम का आपने प्लांट सुना होगा. बहुत बेसिक एग्जांपल है. वो एलर्जिक प्लांट होता है जिससे इन्फ्लामेशन एंड वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन होती है अगर हम उसको टच करें. सो देन दिस पॉइजन आइवी जो है उसके अंदर एक केमिकल कुछ तो कंपोनेंट रहता है, लाइक यूरेशिनॉल.
नाम का कुछ कंपोनेंट रहता है, व्हेन हम जब उसको टच करते हैं देन व्हेन द यूरेशनॉल कंपोनेंट जब इनसाइड बॉडी में आ जाता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। आफ्टर द ऑक्सीडेशन वो कौन सा तो एक मॉलिक्यूल जनरेट करता है जो हेप्टेन है, मतलब वो खुद जाके कुछ इतना हार्मफुल वगैरह कुछ नहीं है, बट वो जो मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीडाइज होके बन चुका है यूरेशनॉल से, वो जो मॉलिक्यूल है इट विल जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स। जब वो हमारे बॉडी के प्रोटीन्स को जाके बाइंड होगा देन वो हेप्टेन्स और कैरियर का कॉम्बिनेशन होगा एंड वो जो है हमारे बी सेल को एक्टिवेट करेगा, लाइक वेरी लार्ज इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। फिर एलर्जिक रिएक्शन होगी, इन्फ्लामेशन होगा, इचिंग होगी, दिस आर ऑल द टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स ओनली। एलर्जी भी एक इम्यून रिस्पॉन्स ही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेप्टेन्स। अगर आपको एग्जाम्पल याद रखना हो तो प्लीज़ आप पेनिसिलिन का एग्जाम्पल याद रखो कि कैसे हम उसको लेते हैं, कैसे वो एंटीबॉडी जनरेट करता है, तब जब वो जाके हमारे बॉडी के प्रोटीन से बाइंड होता है देन इट विल ओनली जनरेट एंटीबॉडीज। ओके, सो हेप्टेन्स आर नॉट, इतना डायग्राम भी आपने याद रखा तब भी आपको बहुत कुछ समझ आएगा, और ये 4 कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप you have understood the heptene concept, and if not please do comment in the comment section. And in the next lecture we are going to see what are adjuvants, what are carriers, and then other than these there are various concepts in the antigen chapter. So thank you.